بیشی تھی تو اس کو دفاع کے لیے آپ بعد میں استعمال کر سکتے تھے۔ سائفر ٹرائل کا عدم ہونے سے استغاثہ تمام غلطیاں دور کر کے ٹرائل کرے گا۔ آپ کو بتائیں کہ بعد ازاں عدالت کی جانب سے سائفر کیس میں ریاست اور وزارت داخلہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اہم خبر ہے سپریم کورٹ سے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ سے اہم خبر سامنے آ رہی ہے۔ آپ کو بتائیں سائفر کیس میں عمران خان کی ضمانت سے متعلق اہم اقدام اٹھایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے سائفر کیس میں عمران خان کی ضمانت کی درخواست پر ریاست اور وزارت داخلہ کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے جسٹس طارق مسعود کی سربراہی میں جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس عائشہ ملک پر مشتمل 3 رکنی بینچ ہے جس نے آج اس درخواست پر سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں ضمانت سے متعلق درخواست ہے یہ۔ اس سلسلے میں عمران خان کی طرف سے وکیل سلمان صفدر عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے ایف آئی آر کی کاپی عدالت میں پڑھ کر بھی سنائی۔ آپ کو بتائیں کہ جسٹس طارق نے سوال کیا اس موقع پر کہ یہ معاملہ ہے کب کا۔ اس پر عمران خان کے جو وکیل ہیں سلمان صفدر، انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ گزشتہ سال 2022 کا ہے۔ اس پر جسٹس طارق مسعود نے کہا کہ سائفر کا مقدمہ درج ہونے میں پورا سال ہی لگا دیا گیا۔ کچھ دفعات میں 2 سال کی سزا ہے جبکہ کچھ میں سزائے موت اور عمر قید ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر جسٹس طارق نے ایف آئی اے تفتیشی افسر کے بغیر نوٹس پیش ہونے پر عدالت میں برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ کو کس نے بلایا ہے عدالت میں، آپ پیچھے جا کر بیٹھ جائیں۔ آپ کو بتائیں کہ عدالت میں سلمان صفدر نے انکوائری رپورٹ اور مقدمے میں چیئرمین پی ٹی آئی پر لگائے گئے الزامات پڑھ کر سنائے اور کہا کہ الزام لگایا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اعظم خان کو سائفر کو غلط رنگ دینے کا کہا۔ الزام لگایا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے بلا واسطہ یا بالواسطہ ریاست کو نقصان پہنچایا۔ اس موقع پر جسٹس مسعود نے پوچھا کہ شریک ملزمان کے کردار کا تعین ہوا۔ اس پر وکیل صفائی نے کہا کہ اسد عمر کو چھوڑ دیا گیا، اعظم خان کو ملزم سے استغاثہ کا گواہ بنا دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس موقع پر ریمارکس دیے جن کا کہنا تھا کہ پہلے کیس میں کہا گیا کہ اعظم خان ملزم ہے، انکوائری میں کہا گیا تھا کہ شریک ملزمان کا کردار تفتیش میں طے کیا جائے گا۔ حتمی تفتیشی رپورٹ میں اعظم خان سے متعلق تفتیشی افسر نے کیا کہا۔ اس موقع پر آپ کو بتائیں کہ عدالت میں سلمان صفدر نے اس بات پر جواب دیا، کہا کہ تفتیشی افسر نے کوئی واضح موقف نہیں بتایا۔ اعظم خان اغوا ہوئے اور ان کے اہل خانہ نے مقدمہ بھی اغوا کا درج کروایا۔ آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر جسٹس طارق مسعود نے کہا کہ سائفر کیس کا جو ٹرائل کالعدم ہوا ہے گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، اس میں کہا گیا کہ یہ تو آپ کا اپنا ہی نقصان ہے، سائفر کے ٹرائل میں کوئی بھی کمی بیشی تھی تو اس کو دفاع کے لیے آپ بعد میں استعمال کر سکتے تھے۔ سائفر ٹرائل کالعدم ہونے سے استغاثہ تمام غلطیاں دور کر کے ٹرائل کرے گا۔ آپ کو بتائیں کہ بعد ازاں عدالت کی جانب سے سائفر کیس میں ریاست اور وزارت داخلہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اہم خبر ہے سپریم کورٹ سے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ سے اہم خبر سامنے آ رہی ہے۔ آپ کو بتائیں سائفر کیس میں عمران خان کی ضمانت سے متعلق اہم اقدام اٹھایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے سائفر کیس میں عمران خان کی ضمانت کی درخواست پر ریاست اور وزارت داخلہ کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے جسٹس طارق مسعود کی سربراہی میں جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس عائشہ ملک پر مشتمل 3 رکنی بینچ ہے جس نے آج اس درخواست پر سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں ضمانت سے متعلق درخواست ہے یہ۔ اس سلسلے میں عمران خان کی طرف سے وکیل سلمان صفدر عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے ایف آئی آر کی کاپی عدالت میں پڑھ کر بھی سنائی۔ آپ کو بتائیں کہ جسٹس طارق نے سوال کیا اس موقع پر کہ یہ معاملہ ہے کب کا۔ اس پر عمران خان کے جو وکیل ہیں سلمان صفدر، انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ گزشتہ سال 2022 کا ہے۔ اس پر جسٹس طارق مسعود نے کہا کہ سائفر کا مقدمہ درج ہونے میں پورا سال ہی لگا دیا گیا۔ کچھ دفعات میں 2 سال کی سزا ہے جبکہ کچھ میں سزائے موت اور عمر قید ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر جسٹس طارق نے ایف آئی اے تفتیشی افسر کے بغیر نوٹس پیش ہونے پر عدالت میں برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ کو کس نے بلایا ہے عدالت میں، آپ پیچھے جا کر بیٹھ جائیں۔ آپ کو بتائیں کہ عدالت میں سلمان صفدر نے انکوائری رپورٹ اور مقدمے میں چیئرمین پی ٹی آئی پر لگائے
इल्ज़ामात पढ़कर सुनाए और कहा कि इल्ज़ाम लगाया गया कि चेयरमैन पीटीआई ने आज़म खान को साइफर को गलत रंग देने का कहा। इल्ज़ाम लगाया गया कि चेयरमैन पीटीआई ने बिला वास्ता या बिलवास्ता रियासत को नुकसान पहुंचाया। इस मौके पर जस्टिस मसूद ने पूछा कि शरीक मुल्ज़िमान के किरदार का तयन हुआ। इस पर वकील सफाई ने कहा कि असद उमर को छोड़ दिया गया, आज़म खान को मुल्जिम से इस्तगासा का गवाह बना दिया गया। आपको बताएं कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए, जिनका कहना था कि पहले केस में कहा गया कि आज़म खान मुल्जिम है। इंक्वायरी में कहा गया था कि शरीक मुल्जिमान का किरदार तफ्तीश में तय किया जाएगा। हतमी तफ्तीशी रिपोर्ट में आज़म खान से मुतालिक तफ्तीशी अफसर ने क्या कहा। इस मौके पर आपको बताएं कि अदालत में सलमान सफदर ने इस बात पर जवाब दिया, कहा कि तफ्तीशी अफसर ने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं बताया। आज़म खान अगवा हुए और इनके अहले खाना ने मुकदमा भी अगवा का दर्ज करवाया। आपको बताएं कि इस मौके पर जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि साइफर केस का जो ट्रायल कलअदम हुआ है गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, इसमें कहा गया कि ये तो आपका अपना ही नुकसान है, साइफर के ट्रायल में कोई भी कमी बेशी थी तो इसको दिफा के लिए आप बाद में इस्तेमाल कर सकते थे। साइफर ट्रायल कलअदम होने से इस्तिगासा तमाम गलतियां दूर करके ट्रायल करेगा। आपको बताएं कि बाद अज़ां अदालत की जानिब से साइफर केस में रियासत और वजारत दाखिला को नोटिस जारी करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अहम खबर है सुप्रीम कोर्ट से जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से अहम खबर सामने आ रही है। आपको बताएं साइफर केस में इमरान खान की जमानत से मुतालिक अहम इकदाम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से साइफर केस में इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त पर रियासत और वजारत दाखिला को नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच है जिसने आज इस दरख्वास्त पर समाअत की। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जमानत से मुतालिक दरख्वास्त है ये। इस सिलसिले में इमरान खान की तरफ से वकील सलमान सफदर अदालत में पेश हुए। उन्होंने FIR की कॉपी अदालत में पढ़कर भी सुनाई। आपको बताएं कि जस्टिस तारिक ने सवाल किया इस मौके पर कि ये मामला है कब का। इस पर इमरान खान के जो वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने कहा कि मामला गुज़िश्ता साल 2022 का है। इस पर जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि साइफर का मुकदमा दर्ज होने में पूरा साल ही लगा दिया गया। कुछ दफ़ात में 2 साल की सज़ा है जबकि कुछ में सज़ाए मौत और उम्र कैद है। आपको बताएं कि इस मौके पर जस्टिस तारिक ने FIA तफ्तीशी अफसर के बगैर नोटिस पेश होने पर अदालत में बरहमी का इजहार किया और कहा कि आपको किसने बुलाया है अदालत में, आप पीछे जाकर बैठ जाएं। आपको बताएं कि अदालत में सलमान सफदर ने इंक्वायरी रिपोर्ट और मुकदमे में चेयरमैन PTI पर लगाए गए इल्ज़ामात पढ़कर सुनाए और कहा कि इल्ज़ाम लगाया गया कि चेयरमैन PTI ने आज़म खान को साइफर को गलत रंग देने का कहा। इल्ज़ाम लगाया गया कि चेयरमैन PTI ने बिला वास्ता या बिलवास्ता रियासत को नुकसान पहुंचाया। इस मौके पर जस्टिस मसूद ने पूछा कि शरीक मुल्ज़िमान के किरदार का तयन हुआ। इस पर वकील सफाई ने कहा कि असद उमर को छोड़ दिया गया, आज़म खान को मुल्जिम से इस्तगासा का गवाह बना दिया गया। आपको बताएं कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए, जिनका कहना था कि पहले केस में कहा गया कि आज़म खान मुल्जिम है। इंक्वायरी में कहा गया था कि शरीक मुल्ज़िमान का किरदार तफ्तीश में तय किया जाएगा। हतमी तफ्तीशी रिपोर्ट में आज़म खान से मुतालिक तफ्तीशी अफसर ने क्या कहा। इस मौके पर आपको बताएं कि अदालत में सलमान सफदर ने इस बात पर जवाब दिया, कहा कि तफ्तीशी अफसर ने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं बताया। आज़म खान अगवा हुए और इनके अहले खाना ने मुकदमा भी अगवा का दर्ज करवाया। आपको बताएं कि इस मौके पर जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि साइफर केस का जो ट्रायल कलअदम हुआ है गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, इसमें कहा गया कि ये तो आपका अपना ही नुकसान है, साइफर के ट्रायल में कोई भी कमी बेशी थी तो इसको दिफा के लिए आप बाद में इस्तेमाल कर सकते थे। साइफर ट्रायल कलअदम होने से इस्तिगासा तमाम गलतियां दूर करके ट्रायल करेगा। आपको बताएं कि बाद अज़ां अदालत की जानिब से साइफर केस में रियासत और वजारत दाखिला को नोटिस जारी करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अहम खबर है सुप्रीम कोर्ट से जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट से अहम खबर सामने आ रही है। आपको बताएं, साइफर केस में इमरान खान की जमानत से मुतालिक अहम इकदाम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से साइफर केस में इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त पर रियासत और वजारत दाखिला को नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच है, जिसने आज इस दरख्वास्त पर समाअत की। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जमानत से मुतालिक दरख्वास्त है ये। इस सिलसिले में इमरान खान की तरफ से वकील सलमान सफदर अदालत में पेश हुए। उन्होंने FIR की कॉपी अदालत में पढ़कर भी सुनाई। आपको बताएं कि जस्टिस तारिक ने सवाल किया इस मौके पर कि ये मामला है कब का। इस पर इमरान खान के जो वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने कहा कि मामला गुज़िश्ता साल 2022 का है। इस पर जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि साइफर का मुकदमा दर्ज होने में पूरा साल ही लगा दिया गया। कुछ दफ़ात में 2 साल की सज़ा है, जबकि कुछ में सज़ाए मौत और उम्र कैद है। आपको बताएं कि इस मौके पर जस्टिस तारिक ने FIA तफ्तीशी अफसर के बगैर नोटिस पेश होने पर अदालत में बरहमी का इजहार किया और कहा कि आपको किसने बुलाया है अदालत में, आप पीछे जाकर बैठ जाएं। आपको बताएं कि अदालत में सलमान सफदर ने इंक्वायरी रिपोर्ट और मुकदमे में चेयरमैन PTI पर लगाए गए इल्ज़ामात पढ़कर सुनाए और कहा कि इल्ज़ाम लगाया गया कि चेयरमैन PTI ने आज़म खान को साइफर को गलत रंग देने का कहा। इल्ज़ाम लगाया गया कि चेयरमैन PTI ने बिला वास्ता या बिलवास्ता रियासत को नुकसान पहुंचाया। इस मौके पर जस्टिस मसूद ने पूछा कि शरीक मुल्ज़िमान के किरदार का तयन हुआ। इस पर वकील सफाई ने कहा कि असद उमर को छोड़ दिया गया, आज़म खान को मुल्ज़िम से इस्तगासा का गवाह बना दिया गया। आपको बताएं कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए, जिनका कहना था कि पहले केस में कहा गया कि आज़म खान मुल्ज़िम है, इंक्वायरी में कहा गया था कि शरीक मुल्ज़िमान का किरदार तफ्तीश में तय किया जाएगा। हतमी तफ्तीशी रिपोर्ट में आज़म खान से मुतालिक तफ्तीशी अफसर ने क्या कहा। इस मौके पर आपको बताएं कि अदालत में सलमान सफदर ने इस बात पर जवाब दिया, कहा कि तफ्तीशी अफसर ने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं बताया। आज़म खान अगवा हुए और इनके अहले खाना ने मुकदमा भी अगवा का दर्ज करवाया। आपको बताएं कि इस मौके पर जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि साइफर केस का जो ट्रायल कलअदम हुआ है गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, इसमें कहा गया कि ये तो आपका अपना ही नुकसान है। साइफर के ट्रायल में कोई भी कमी बेशी थी तो इसको दिफा के लिए आप बाद में इस्तेमाल कर सकते थे। साइफर ट्रायल कलअदम होने से इस्तगासा तमाम गलतियां दूर करके ट्रायल करेगा। आपको बताएं कि बाद अज़ां अदालत की जानिब से साइफर केस में रियासत और वजारत दाखिला को नोटिस जारी करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अहम खबर है सुप्रीम कोर्ट से जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से अहम खबर सामने आ रही है। आपको बताएं, साइफर केस में इमरान खान की जमानत से मुतालिक अहम इकदाम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से साइफर केस में इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त पर रियासत और वजारत दाखिला को नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच है, जिसने आज इस दरख्वास्त पर समाअत की। चेयरमैन PTI की साइफर केस में जमानत से मुतालिक दरख्वास्त है ये। इस सिलसिले में इमरान खान की तरफ से वकील सलमान सफदर अदालत में पेश हुए। उन्होंने FIR की कॉपी अदालत में पढ़कर भी सुनाई। आपको बताएं कि जस्टिस तारिक ने सवाल किया इस मौके पर कि ये मामला है कब का। इस पर इमरान खान के जो वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने कहा कि मामला गुज़िश्ता साल 2022 का है। इस पर जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि साइफर का मुकदमा दर्ज होने में पूरा साल ही लगा दिया गया। कुछ दफ़ात में 2 साल की सज़ा है, जबकि कुछ में सज़ाए मौत और उम्र कैद है। आपको बताएं कि इस मौके पर जस्टिस तारिक ने FIA तफ्तीशी अफसर के बगैर नोटिस पेश होने पर अदालत में